So let us start with the quiz of matrices and determinant. So I'm going to start. Be ready with your registers and pen. All the best, bachcho. This is the first question is, if A and B are the square matrices of the same order, then A plus B into A minus B is equal to what? 4 options are given to you. Observe this question. ये दोनों A और B आपके matrices हैं. ध्यान से इसको calculate करें. Panic नहीं करना. You should be able to get the right answer. Okay? Your time starts now. 20 seconds I am giving it to you. Twenty seconds over. So let's see what is the answer. Answer is option B. A square minus AB plus B. ये कैसे आया? Generally अगर हम starting में देखते हैं तो A plus B, A minus B quickly reminds us of the identity कि आपने real numbers में पढ़ा है कि A plus B, A minus B क्या होता है. Generally हम quickly फटाफट A square minus B square पे टिक कर देते हैं. But be very careful, यहाँ पे ये real numbers नहीं है बेटा. These are matrices. तो आपका ये कैसे आएगा देखेंगे आप. A plus B जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A into A, that is A square, minus A into B, AB, plus BA minus B square. इसी तरह से जैसे आप दो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान बस ये देना है बेटा कि यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं. AB और BA बराबर नहीं होते. रियल नंबर्स में तो ये बराबर होते हैं और ये कैंसिल हो जाते हैं. तो आंसर इज ऑप्शन B. Okay, well done. So start question 2. I am taking question number 2. Ready? Question number 2 is the matrix A is given to you. Observe this matrix carefully. It is a 3 by 3 matrix. अब आपको ये देखना है कि क्या ये diagonal matrix है, symmetric है, skew symmetric है या ये scalar matrix है. Quickly recall your definitions and your time starts now. Very good. Many students have correctly answered. Yes, it is a skew symmetric matrix. Wonderfully, you have written the answer. Skew symmetric. क्यों? सभी ने explain देखा. Skew symmetric की खास बात क्या होती है? सबसे पहले तो बेटा skew symmetric की बात होती है कि सारी diagonal entries देख सकते हैं आप, zeros हैं. ये बहुत frequently asked question पूछा जाता है बेटा. Prove करना भी आता है कि skew symmetric matrix में diagonal entries हमेशा zeros क्यों होती हैं. देखेंगे आप सारी जीरोस हैं. बहुत काफी सालों से पूछा जा रहा है. ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द पेपर सेटर. और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है बेटा? हमने अभी सीखा है कि A इज इक्वल टू व्हाट? माइनस A ट्रांसपोज. A जो होता है अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव होता है. दैट मीन्स जो Aij है दैट इज इक्वल टू minus of A J I. तो इसका मतलब है जब भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रेम करना है बेटा, क्विकली पहले तो डायगोनल एंट्री 0 कर दो, क्योंकि डायगोनल के लिए I और J तो बराबर हो जाएंगे ना. ये डायगोनल होता है A11, A22, A33. I और J सब्सक्रिप्ट बराबर हो गए. तो जब आप I और J इसमें बराबर करेंगे तो AI और माइनस AII ये कौन से रियल नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर है? 0. तो डायगोनल्स तो बेटा 0 आ गए. और A12 पे कौन बैठा हुआ है? 8. A12 पे कौन बैठा हुआ है? 8. और A21 पे कौन बैठा है? माइनस 8. जे हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव होंगे. यही तो कंडीशन है. AIJ इज माइनस ऑफ AJI. A13 पे कौन बैठा है? माइनस 3. और A31 पे कौन बैठा है? 3. तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ना कि AIJ इज माइनस ऑफ AJI. A13 इज माइनस ऑफ A31. A23 पे कौन बैठा हुआ है एलिमेंट? माइनस 11. और A32 पे कौन बैठा हुआ है?
11। तो आपने देखा ये वाली एंट्रीज 8 -8 -3 3 -11 11, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है और डायगोनल एंट्री 0 है। तो you are able to identify, yes, it is a skew symmetric matrix. It is the right option. Very good, well done. So let us take question number 3. I am reading out the question aloud. A is the square matrix of order 3. 3 by 3 है, 3 rows 3 columns, and capital Aij and Mij यही usual notations हैं. ये क्या है? आपकी cofactor and minor of the element Aij. Then which of the following expression is always equal to delta A? Is always equal to determinant A. तो कौन से ये चार एक्सप्रेशन है? हमने बड़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ए इवैल्यूएट करने को की थी. क्विकली ऑब्जर्व दीज एक्सप्रेशंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes. Now let us see the answer. किसने क्या आंसर दिया चेक करेंगे बेटा. दिस इज द ऑप्शन डी. ध्यान से देखना है, मैं देख रही हूँ अभी सभी ने, कुछ बच्चों ने ठीक आंसर नहीं किया है. ये देखिए A11, A12 और A13, ये देखेंगे आप. A11, A12, A13 ये किसके हैं एलिमेंट्स? फर्स्ट रो के. फर्स्ट सबस्क्रिप्ट सेम है ना बेटा. और साथ में A21, A22, A23 ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं. तो ये हमने एक प्रॉपर्टी की थी, आपको सिखाई गई थी बेटा हमारी फैकल्टी ने, कि जब भी किसी रो के एलिमेंट्स किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं तो आंसर हमेशा कितना आता है बेटा? आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो ये वाला एक्सप्रेशन तो बेटा 0 हो गया. इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो. अच्छा, आप सेकंड में देखें. सेकंड में A21, M21, A22, M22, A23, M23 ये आपके सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं और कोफैक्टर सेकंड रो के नहीं है. इसमें इन्होंने क्या गेम खेला इस पार्ट में बेटा? M21 अगर कोफैक्टर बनाना था तो यहाँ पे क्या चलना चाहिए था? साइन माइनस प्लस. इट शुड बी, अगर डिटर्मिनेंट ये होता तो ये माइनस होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था, ये माइनस होना चाहिए था. तो हम कहते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है. तो ये भी ऑप्शन हमारी गलत हो गई. थर्ड में देखें A11, A21, A31 ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं? A13, A23, A33. ठीक है ना. तो ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइंग विद द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम. तो ये ऑप्शन भी हमारी गलत हो गई. इसका आंसर भी 0 आ गया. नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली. ऑप्शन डी देखेंगे बेटा. इसमें -A12, M12 ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है. सेकंड कॉलम के एलिमेंट को M12 से मल्टीप्लाई किया. सेकंड कॉलम A22, M22 और A32, M32 और सीक्वेंस भी आपकी ठीक ली हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. वेल डन. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट्स. फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order 6, what is the value of determinant of adjoint A? You are asked to find the determinant of adjoint A. Your time starts now. Many have correctly answered. Very good. अनिल कोहली, वेरी गुड. दिव्यांश तिवारी, सबने बहुत अच्छे से आंसर दिया. आंसर इज ऑप्शन डी. इसको देख के क्या आती है हमारे पास? हमने एक रिलेशनशिप बेटा लर्न किया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए में आपस में क्या रिश्ता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर n-1. जितना ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो हमें ए मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए नहीं निकालना. वी आर नॉट सिली स्टूडेंट्स कि हम एडजॉइंट ए निकालेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. वी आर स्मार्ट स्टूडेंट्स. हम सीधा प्रॉपर्टी यूज की. क्या था आपका? ये 6. तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 6 - 1 5. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन
डी, वेरी गुड. ओके, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन. शाबाश. क्वेश्चन नंबर 5. यू आर गिवन बेटा कि ए एक मैट्रिक्स है 3/3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अपनी डेफिनेशन दिमाग में रिकॉल करेंगे. एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ a plus b. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Quickly waiting for your responses, बच्चों. Okay, let's see what is the answer. Answer is option A. Those who have answered it correct. देखेंगे क्यों. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने बच्चों क्या पढ़ा है. हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या पढ़ी हुई है डेफिनेशन. इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि 10 मार्क्स में सिमेट्रिक पे तो ऑब्जेक्टिव ही बनता है बच्चों. A इक्वल टू A ट्रांसपोज. जब नेगेटिव होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है. जब पॉजिटिव A और A ट्रांसपोज बराबर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है. तो अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात. हमने क्या लिखा. AI J is JI. मतलब जो एंट्री A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे है बच्चों, वही एंट्री तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे होनी चाहिए. तो इस नियम से 2B 3 होना चाहिए. तो B कितना हो गया. B is equal to how much. B is equal to 3 divided by 2. ओके. अब और ये वाली एंट्री कौन से उस पे है पोजीशन पे. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे है 3A. इनको भी बराबर होना पड़ेगा. तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों. -2/3, क्योंकि हमें तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक गिवन है. तो बस यही कंडीशन यूज करनी थी. और ये 3 और 3 तो ऑलरेडी सेम गिवन ही है. तो A plus B एक्सप्रेशन की वैल्यू, क्विकली ऐड दीज टू एक्सप्रेशन. कितना आएगा बेटा. 9 माइनस. ठीक है. तो कितना आ गया. आंसर इज ऑप्शन A, दैट इज 9 minus 4, 5/6. वेरी गुड. ठीक है. वेल डन. कीप इट अप. Now let's come to the question number 6. I am reading out the question. How many possible number of matrices can you make of order 2 cross 2, जिसकी हर एंट्री में या तो 1 फिल हो सकता है with each entry either 1, 2 or 3. Okay. Option A, B, C, D are given. Your time starts now. Yes, very good. बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया. 81. Yes, it is the right answer. देखेंगे क्यों. ये अपना थोड़ा सा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 11th में आपने किया था. ऑफ ऑर्डर 2 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो बेटा उसमें कितनी पोजीशन आपको फिल करनी है. 4 पोजीशन. आपने ये नियम किया हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि जब भी हमें 4 परम्यूटेशन में 4 बॉक्सेस भरने हैं और हर बॉक्स के हर के पास कितने पोजीशंस, कितने हैं नंबर 1, 2 और 3. इधर भी 3 आ सकते हैं ऑप्शंस, इधर भी 3 आ सकते हैं, इधर भी 3 आ सकते हैं, इधर भी 3 आ सकते हैं. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कितने आप पॉसिबल मैट्रिसेस अरेंजमेंट बना सकते हैं. 3 raised to the power 4. करेक्ट ऑप्शन इज 81. ऑप्शन ए. वेल डन. Many have answered correctly. Very good. All of you are studying now. I have come to know. Shabash bachcho. Now come to the question number 7. I am reading out this question aloud. A is a 2/2 matrix. 3, 5, 7, 9 is written as A is equal to sum of two matrices P and Q, where P is given to be a symmetric and Q is given to you as Q symmetric. ये unique splitting होती है. Then you are asked to find the difference between, आपको difference निकालना है बच्चों, between the sum of the diagonal elements of P and Q. P और Q के diagonal elements को जोड़ के उनका difference क्या होगा. Your time starts now.
वेरी गुड दिव्यांशी, मैंने देखा बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया. क्विकली शी हैज आंसर्ड. आंसर इज ऑप्शन सी 12. ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता था बेटा कुछ सालों पहले, ये बहुत फेमस था ये क्वेश्चन. आजकल पिछले साल का तो नहीं अभी आया, बट एक किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो टुकड़े तोड़ सकते हैं उसकी मैट्रिसेस में, यूनिक स्प्लिटिंग, जिसमें एक सिमेट्रिक होता है और एक क्यू सिमेट्रिक होता है. आपको पी और क्यू इसमें नहीं निकालना था. पी क्या होता है ये आपने आर्टिकल पहले आपको पढ़ाया था. पी इज गिवन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2. और क्यू क्या होता था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस जो हम बनाते हैं. दिस इज ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2. एक ही मैट्रिक्स की हम दो टुकड़े करते हैं, एक पी और क्यू, जिसमें पी सिमेट्रिक होता है और क्यू सिमेट्रिक होता है. आपसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट. तो जब आप बेटा पी फ्रेम करेंगे तो पी मैट्रिक्स आपका कैसा होगा. आपको सारा नहीं फ्रेम करना था, हमें सारा फ्रेम नहीं करना था. हमें क्या करना था, खाली हमको सारा फ्रेम नहीं करना था. ठीक है, आपको P निकालना है, P के डायगोनल एलिमेंट्स. तो P के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2. तो A ट्रांसपोज के एलिमेंट्स में एक डायगोनल एंट्रीज तो क्या रहेंगी बच्चों, 3 ही तो रहेगी डायगोनल एंट्री, और नेक्स्ट ये वाली भी 9 ही रहेगी. तो जब आप P बनाएंगे 3 + 3 6, 6 का आधा 2, तो डायगोनल एंट्री P की 2 ही रहेगी. और 9 डायगोनल जब A ट्रांसपोज ऐड करेंगे 9 और 9 18, और 18 का आधा 9. तो ये आपका P की डायगोनल एंट्रीज यही रहेंगी ना, 2 और 9. और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक जब आप फ्रेम करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक की डायगोनल एंट्रीज तो बच्चों हमेशा 0 ही होती हैं. अभी हमने प्रीवियस भी सीख चुके हैं. तो आपको इनके डायगोनल एलिमेंट्स के सम का डिफरेंस निकालना था. तो ये कितना सम हो गया आपका, सॉरी ये आपका 3 है, 3 और 9 12, और ये कितना है 0. 12 minus 0 is option C, that is 12. Okay, very good. Now let us start with the question number 8. I am reading out the question. If A is the product of three matrices, you can see 2 1 3, एक ये मैट्रिक्स है आपका और एक J column मैट्रिक्स. You are asked to find the order of A. Quickly see and answer me. Your time starts now. Yes, I am watching the answer. Some बहुतों ने ठीक बताया. See what is the answer? It is option B 1 × 1. ये सिंपल, आप एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी देखनी थी बेटा. इसका ऑर्डर चेक करो कितना है. इसका ऑर्डर कितना है 1 × 3. एक रो है और 3 कॉलम्स हैं. इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3. तो यस ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. और इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज है बेटा और एक कॉलम. यही ऑर्डर ही तो देखना था. इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, कॉलम्स 3 और 3 सेम हो गए, तो ये कितना आ गया आपका 1 × 3. जब इसको 3 × 1 से किया हमने तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, ए का ऑर्डर 1 × 1. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वेल डन, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 9. Read, I am reading the question. Aij is the cofactor of the element Aij of the determinant. This 3 by 3 matrix का मैंने आपको एक determinant दिया है. ध्यान से देखें, मैंने आपसे क्या पूछा है, product of A32 and cofactor of A32. Quickly, your time starts now. Time is over. Stop. See, the option is D -70. दिया किसी ने -70. Question 9. It is -70. See how A32 third row and second column. Third row second column पे कौन सा बैठा हुआ एलिमेंट 7 और उसका कोफैक्टर.
थर्ड रो सेकंड कॉलम को अगर हम डिलीट करते हैं तो पहले तो माइनर निकालेंगे, 5 2 10, 10 माइनस 0 0, 10, तो ये कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर के लिए साइन कितना होगा 3 + 2 5, ठीक है, ये आपका क्या है ऑड है सम, तो इट इज -1 से ये मल्टीप्लाई होगा एंड 10, माइनर कितना आया आपका 10, तो आंसर इज -70, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेरी गुड। Question number, let us start with the question number 10. Capital A and B are matrices of order 3 × 2 and B का order है बेटा 2 × 4 and you are asked to find what is the order of AB transpose. Read this question carefully. Your time starts now. Very good. Many have correctly answered. Option is 4 × 3. Option B is the right answer. ध्यान से देखें, A का ऑर्डर कितना है 3 रो 2 कॉलम, B का ऑर्डर कितना है 2 रो 4 कॉलम, 2 × 4। AB को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 और 2 सेम है, तो AB का ऑर्डर कितना आएगा 3 × 4, और 3 × 4 का जब आप ट्रांसपोज लेंगे, देखें आपसे ट्रांसपोज पूछा हुआ है, तो आंसर इज 4 × 3, क्योंकि रोज कॉलम्स में परिवर्तित हो गए और कॉलम्स रोज में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल आंसर्ड, वेल डन बच्चों। Let us come to the question number 11. See, A and B are symmetric matrices such that AB and BA are both defined. Then which of the following statements is true? ध्यान से पढ़ेंगे। Your time starts now. AB BA के बराबर है, नेगेटिव BA के बराबर है, या स्क्यू सिमेट्रिक है, या सिमेट्रिक है। Quickly. This is also one of the favorite questions of the paper setter. अक्सर पूछा जाता है बेटा, ये लास्ट ईयर्स के पेपर्स के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। Yes, now 20 seconds over. Let's see what is the answer. This is the option C. AB minus BA आपका क्या होगा बेटा? It is the skew symmetric matrices. ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? Skew symmetric। जब भी आपने देख लिया ना डायगोनल एंट्रीज जिसकी 0 होती हैं, क्योंकि ये तो देखिए आपके सिमेट्रिक हैं, मतलब A ट्रांसपोज A के बराबर है, B ट्रांसपोज B के बराबर है, तो कोई ये जरूरी थोड़ी है कि A भी BA के बराबर हो। ऑप्शन ए तो आपकी गलत हो गई, A भी नेगेटिव BA के बराबर भी नहीं है। लेट्स सी द सॉल्यूशन कि ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है। A ट्रांसपोज A है, B ट्रांसपोज B है, तो AB माइनस BA का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो गया, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। अब ये खास प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ट्रांसपोज जब भी प्रोडक्ट का लेते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेस बट इन द रिवर्स ऑर्डर। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ट्रांसपोजेस बट उल्टा करके, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इधर भी हमने उल्टा कर दिया, BA का ट्रांसपोज क्या लिखा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब हमने इनकी ये यूज की कि A ट्रांसपोज तो है A के बराबर, तो और B ट्रांसपोज किसके बराबर है, B। हमने ये फैक्ट यूज किया, आई कैन टेक माइनस कॉमन, तो ये क्या आ गया, AB माइनस BA का ट्रांसपोज, इट इज नेगेटिव ऑफ AB माइनस BA। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, स्क्यू सिमेट्रिक वाली हमारी ऑप्शन थी ना बेटा, दिस इज AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ करना आएगा तो भी आपका 2 मार्क्स में आप प्रूफ कर सकते हैं। वेल डन, कीप इट अप। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। For a 3 × 3 matrix A, I am giving you the product A into a joint A is given by this matrix. Observe this matrix carefully and then find the value of determinant of adjoint A. Here are your options. Your time starts now. Yes, many students have correctly answered. It is option B, 25. See why? A into adjoint A की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये किसके बराबर होता है बेटा, A into adjoint A is equal to determinant A
मल्टीप्लाई बाय आई। ये प्रॉपर्टी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना बड़ा एक्सप्रेशन कुछ नहीं आता, ना सिंपल सा आता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो अगर इसको इसमें कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा बच्चों, इसको हम क्या 5 कॉमन नहीं ले सकते इसमें से? यस, वी कैन टेक 5 कॉमन आई। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ए कम्स आउट टू बी 5। और आपसे क्या पूछा गया था? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। और अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो यहाँ पे कितना ऑर्डर आपका गिवन है? ऑर्डर इज 3, तो n-1 becomes 2। डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया आपका? 5। तो 5 square is 25 is the correct answer. Okay, well done. Question number 13. I am reading out the question. A is the square matrix of order 3 such that determinant A is -10 and determinant KA is 270. KA का determinant 270 है. You are asked to find the value of K. Quickly solve and tell me the answer. Your time starts now. Yes, now stop. The answer is option B -3. इसमें क्या खास प्रॉपर्टी यूज हुई है बच्चों? देखिए, डिटर्मिनेंट किसका था? आपको KA गिवन था। KA मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें A की हर एंट्री K से मल्टीप्लाई होती है। अब ये एक प्रॉपर्टी कभी नहीं भूलनी, इस पे जरूर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनता है बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ KA जितना A का ऑर्डर होता है उतने ही K बाहर आते हैं। ये नहीं कि K आपका एक खाली बाहर आ गया। ऑर्डर कितना था? ऑर्डर वाज 3। तो क्योंकि के में हर एंट्री के से मल्टीप्लाइड है, एक फर्स्ट रो में से बाहर आया, एक के सेकंड रो में से, एक के थर्ड रो में से, तो कितने के बाहर आ गए? के क्यूब। डिटर्मिनेंट के आपको गिवन था 270, के क्यूब। डिटर्मिनेंट ए भी गिवन था -10। आपका ये क्या हो गया? 10 से 10 कट गया, के क्यूब कितना आ गया? -27। -27 किसका क्यूब होता है? -3। यस, वेरी गुड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, वेल डन। Question number 14. Let A is this diagonal matrix I am giving you. X, Y और बाकी entry zeros है, where X and Y are given to be non-zero. If A square plus A is 0, then which of the following option is incorrect? Incorrect पूछा है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन को रीड ध्यान से करना है, मैंने देखा है। Your time starts now. यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, आपने दिया, लेकिन क्यों? जरा ध्यान देंगे आप क्यों? देखो, यहाँ तो मैंने बेटा इनकरेक्ट लिख दिया हाईलाइट, पेपर में तो एक ही उसमें लिखा होगा, क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्टिव में लूज क्या करते हैं? बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो जल्दी जल्दी हमें आता है। रीड केयरफुली, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है? नाउ सी द आंसर। आपको क्या गिवन था? ए गिवन था, तो ए स्क्वायर प्लस ए। एक चीज और देखिए आप, डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, या कोई भी पावर नेचुरल नंबर लेंगे, ए की पावर 4, तो क्या होता है? आपके डायगोनल एंट्रीज की उतनी ही पावर बन जाती है। आप ये वेरीफाई करके देख लें, इंडक्शन प्रिंसिपल से हमेशा ट्रू है। ए अगर ये है तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बन गया आपका? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया? डायगोनल एंट्रीज का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बाकी दोनों एंट्रीज वही रहेंगी, ठीक है? अब इसमें जब हमने ए जोड़ा तो ये आपको गिवन था ना जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो जोड़ेंगे तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारा आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब जब हम ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी 0 और वाई स्क्वायर प्लस वाई 0। तो फैक्टर्स बनाए, या तो एक्स 0 होगा या एक्स -1 होगा, बट वी आर गिवन कि x तो 0 है नहीं, तो x भी -1 है और y भी -1 है। आपसे पूछा गया था, पीछे देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। दोनों की वैल्यू -1 है, तो प्रोडक्ट तो 1 होगा ही होगा, ये करेक्ट है।
-1 और -1 जोड़ के कितने हो गए? -2, ये भी करेक्ट है। और डिवाइड रेशियो करेंगे तो भी 1 आएगा, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। डिफरेंस तो बेटा 0 आएगा ना, क्योंकि वो दोनों इक्वल है, तो ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी, इन दिस ऑप्शन सी। बट मैं आपसे एक गुजारिश ये करूंगी, आप क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करेंगे एंड देन यू कैन इजीली ग्रैब दोस 25% मार्क्स फ्रॉम द hands of the examiner. Yes, you can do it. Question number 15 देखेंगे. I am reading out. A is the matrix 2, 3, 5, -2. एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जब इसका इनवर्स लिखते हैं, A inverse is K into A. You are asked to find the value of K. Options are there. Your time starts now. Yes, many of you have correctly answered. Well done. The answer is option A, 1/19 is the correct answer. कई बार स्टूडेंट्स गलती से -1/19 लिख देते हैं, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला सबको पता है. क्या होता है? हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला करा हुआ है बेटा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए. ठीक है, तो अगर आप केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो हमें लगेगा जी ये तो एडजॉइंट ए है, कांस्टेंट पूछा गया और हम सीधा -4, -15, -1/19 को क्लिक कर देंगे. बट आपसे क्या कहा गया है कि ए इनवर्स को ए की टर्म्स में लिखना है. तो बेटा जब आप ए इनवर्स निकालेंगे, आपका क्या आ गया डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट कितना आ गया? -19. और ये तो आपको फर्स्ट क्लास में शशांक सर ने बताया था ना 2x2 मैट्रिक्स का कैसे करना है. ये जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, इनको तो हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशंस बदल देते हैं, इंटरचेंज कर दिया. 2 -2 की जगह पे आ गया, -2 2 की जगह पे आ गया. और जो ये वाले एलिमेंट है, डायगोनल तो ये भी है बट मेन डायगोनल नहीं कहलाता ये, तो इसके एलिमेंट्स का नेगेटिव कर देना, -3 -5. एक स्टेप और है कि ये आपको था के ए, क्या ये ए दिख रहा है हमें? ये वाला मैट्रिक्स तो ए नहीं दिख रहा, तो माइनस साइन बेटा आपका अंदर आ जाएगा. तो ये किससे? हर एंट्री माइनस से मल्टीप्लाई हो गई. 2, 3, 5, -2 और बाहर क्या रह गया? कांस्टेंट 1/19. नाउ आई कैन राइट इट एज 1/19 ए. अब आप इसको कंपेयर करो तो k is 1/19. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेल डन. Question number 16. 20 questions are there. If determinant A is 3 and A inverse is given to you as this matrix, what will be the adjoint A? Recall your formula. Your time starts now. Time is over. Now see, what is the solution? Option A is the solution. कैसे ऑप्शन ए सोल्यूशन है? ए इनवर्स और एडजॉइंट ए जैसे ही आपको कहा गया है, एडजॉइंट ए आपको निकालना है, ए इनवर्स आपको गिवन है, तो हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है कि ए इनवर्स, इनके बीच में एक तो रिश्ता हमने ये लर्न किया बार बार, इसी पे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए. अब डिटर्मिनेंट ए गिवन है आपको और ए इनवर्स गिवन है. ए नहीं गिवन है आपको, ए इनवर्स गिवन है. तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं और आपसे ए एडजॉइंट ए पूछा है बेटा, तो ए इनवर्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दो. डिटर्मिनेंट ए कितना है? 3. तो जब 3 को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9. ये एंट्री क्या बन गई? -3. ये क्या बन गई? -5. ये क्या बन गई? 2. तो कौन सी ऑप्शन आ गई आपकी करेक्ट? ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा. तो 9 -3 -5 into करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. वेरी गुड, वेल डन. क्वेश्चन नंबर 17. This is also a very important question. If a matrix A is such that it satisfies this equation, ये एक matrix equation satisfy कर रहा है 3a cube plus 2a square plus 5a plus I is equal to 0. तो आपको इस equation से A inverse is equal to what? Quickly, your time starts now.
Stop. 20 seconds over. Many have correctly answered. Option is A. ये this is again one of the method for finding A inverse बेटा, कि जब भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में पहले पूछा जाता था, आपको मैट्रिक्स गिवन होता था, आपने इसको ये इक्वेशन ए क्यूब आपको आता है निकालना, ये स्क्वायर ए, ये सारी इक्वेशन आपको दिखानी होती थी कि ये 2 मार्क्स की इक्वेशन होती थी कि आपने सेटिस्फाई करने दिखाई, और बाकी 2 मार्क्स में दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कि यहाँ से हम ए इनवर्स कैसे निकालें. बस एक छोटा सा स्टेप करना है, प्री मल्टीप्लाई बोथ दीज इक्वेशंस, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ए इनवर्स से कर दिया, इधर भी ए इनवर्स से कर दिया. आप देखेंगे ये ए इनवर्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 3a स्क्वायर. अभी ये आपको बदलिका मैम डिटेल में सम अप करेंगी तो बताएंगी कि ए इनवर्स और ए आई हो गया, तो क्या रह गया यहाँ पे 3a स्क्वायर. ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या रह गया 2a, क्योंकि ए इनवर्स और ए तो आई होते हैं. ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो गया 5 नहीं लिखना, खाली 5 आए, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है. और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ गया आपका ए इनवर्स, राइट साइड तो 0 ही है. ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, negative of 3a square plus 2a plus 5a. So which option is correct? This is the option. अब ये मेथड आप लर्न कर लें. ये थर्ड मेथड है फॉर फाइंडिंग a इनवर्स. एक तो adjoint a by determinant है, एक आपने सबसे पहले सीखा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. दिस इज द थर्ड मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. वेल डन. So come to the question number 18. I have written let the matrix A is given as A, B1, CD1, EF1, 3 by 3 matrix है, and I have given you that the points AB, CD, EF are the 3 points that are collinear. Collinear सबको पता है collinear points क्या होते हैं. Which option is correct? Your time starts now. Time is over. Now see which option is correct. A inverse, option B. अब आप ध्यान से देखें, पिछली क्लास में आपने सर ने आपको सिखाया था, हमारी फैकल्टी ने ही, कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कोलिनियर, ये तो आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं. कोलिनियर, को का मतलब होता है बेटा सेम, और लीनियर मतलब एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे. वो बिंदु जो एक ही रेखा पे हैं, एक प्लेन पे, उनको हम कोलिनियर कहते हैं. तो ये इसका मतलब ये एक ही लाइन के ऊपर है, एक ए बी है, एक सी डी है और एक ई एफ है. तो इनसे जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ट्राइंगल तो कुछ बना नहीं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल शुड बी 0. और डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया था, अगर ध्यान से देखें तो वो क्या था आपका डिटर्मिनेंट, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट. वही तो लिखते थे आप AB1, तो क्या हम इसको डिटर्मिनेंट A नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन में? वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट A. तो अगर कोलिनियर है तो ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट A 0. डिटर्मिनेंट A 0 है तो क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है? नो, ये तो डिफाइंड है, वेरी वेल डिफाइंड 0. A इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि A इनवर्स का फॉर्मूला फिर वही एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A. जब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो A इनवर्स कैसे डिफाइन होगा? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, option B. Very good. Let's start with the question number 19. If A and B are invertible matrices, then which of the following is not correct? Okay, 4 options are given. Your time starts now. Time is over. Now let's see. You have what answer? Answer is option C. That is A plus B का इनवर्स. उसने पूछा था कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. मैं बार बार फिर से आपको कहूंगी बेटा, ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लेने बहुत इजी हैं. अगर आप थोड़ा सा अटेंटिवली पेपर करें, इजीली आप वो 20-25 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं. देखिए इसमें adjoint A is determinant A into A inverse, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि A inverse का फॉर्मूला क्या होता है, adjoint A by determinant A. ये तो करेक्ट हो गई हमारी ऑप्शन. ठीक है. AB का ट्रांसपोज, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेस बट इन द रिवर्स ऑर्डर. अच्छा, ये देखने में A plus B का इनवर्स ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सही है,
बट अगेन आई विल से जो दिखता है वो होता नहीं है ना कई बार से। फोर्थ ऑप्शन देखें, ए बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज और इनवर्स में होल्ड करती है, लेकिन ये ट्रू नहीं है बेटा। क्यों ट्रू नहीं है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आपको शो करना है कि वो है या नहीं है, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे देखेंगे। ये क्यों नहीं है, क्योंकि a प्लस बी को जब मैं a इनवर्स प्लस बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अगर तो i आएगा तो हाँ हम मानेंगे जी कि ये इसका इनवर्स है, और अगर i नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये इनवर्स नहीं है। मैट्रिक्स में यही तो नियम है, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस, तो होता कुछ नहीं है। तो हमने इधर मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी को हमने मल्टीप्लाई किया a इनवर्स प्लस बी इनवर्स से, चेक करने के लिए कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी कि आई आएगा कि नहीं। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करो, वही जैसे आप अपने एक्सप्रेशन बायनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो गया, ए इनवर्स, फिर क्या आ गया आपका ए बी इनवर्स सेकंड टर्म, फिर क्या आ गया बी ए इनवर्स, और फिर क्या आ गया बी बी इनवर्स। आपने देखा ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो गए तो आई दे दिया, बी और बी इनवर्स ने भी आई दे दिया, और ये क्या पूरा आई के बराबर है, नो दिस इज नॉट इक्वल टू आई। देयरफॉर ये कभी भी a प्लस बी का इनवर्स कभी भी a इनवर्स और d इनवर्स के बराबर नहीं होता। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन विच ऑफ दी इज नॉट करेक्ट, इसमें हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर, let's come to the last question, last quiz question for this session. A, B, C are given to you as three non-zero real numbers. Then you are asked to find the inverse of the matrix A. ध्यान से देखेंगे A कौन सा मैट्रिक्स है। Your time starts now. Time is over. Now let's see what is the answer. It is option D. You have correctly answered बेटा। देखिए कितनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने कितनी बार सीखा। ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका, जब डायगोनल के अलावा बाकी सारी जीरोस आपको दिख रहे हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हमने इनकी कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स होता है। ठीक है, अब आपसे इसका इनवर्स पूछा गया था, तो इनवर्स में बस सिंपल सा फॉर्मूला आप कैसे आएगा बताती हूँ मैं आपको, कि डायगोनल एंट्रीज में 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, और बाकी सारी एंट्रीज आपकी जीरो होंगी। और ये आप कर ही सकते हैं क्योंकि ये आपकी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो यू कैन टेक देयर रेसिप्रोकल। सी हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। अब डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, फिर से ये क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बी प्रिपेयर्ड, यानी कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें और एक्सपैंड करना शुरू कर दीजिए। सीधा डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया, ए बी सी, ओके। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अगर आप पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, कितना आ गया आपका BC। सेकंड का निकालेंगे तो 0, थर्ड का निकालेंगे तो 0, नेक्स्ट इसका 0। अब इसका निकालो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना आ गया AC। अब जब आप इस मैट्रिक्स का, ये तो बेटा आपका क्या आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैंने ट्रांसपोज नहीं लिखा क्योंकि ट्रांसपोज तो यही होता है इसका, डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी तो वो खुद ही होगा, डायगोनल एंट्रीज तो बदलती नहीं है बेटा, बाकी सारी एंट्रीज 0 है। दिस इज द एडजॉइंट ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना 1 बाय ABC। और जब किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, सॉरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो BC बाय ABC कितना हो गया, 1 बाय A 1 बाय B एंड 1 बाय C। तो ऑप्शन D इज करेक्ट। नाउ आई थिंक you have all done, this is the last question of my quiz। मैंने बेटा आप सबको एक प्रैक्टिस क्विज भी दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए ये आप क्वेश्चंस अपना घर में प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन 2 चैप्टर्स का पूरा निचोड़ आपको दे दूं। इफ यू आर एबल टू डू दैट मींस यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दिस चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ये आपको अपने एस्पिरेशन अकाउंट्स में मिल जाएंगे, आप चाहें तो इसको क्लिक ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने आपके दिए हैं, आंसर की भी उसके साथ ही है बच्चों। लास्टली आई वाइंड अप, क्योंकि आपका नेक्स्ट सेशन जो है ये सम अप करेंगी मैम, और जो पिछले सेशंस में डाउट पूछे थे वो मैडम मधुलिका मैम क्लियर करेंगी। एक सिंपल सा मैं सक्सेस मंत्र आज आपको बताना चाहूंगी कि डोंट गेट वरीड। आज हमारे लिए डिफिकल्ट टाइम्स हैं, लेकिन आज अगर हम पेशेंस से
आज हम उस टाइम को निकालें, अपना मन से मेहनत करें, बिकॉज रिमेंबर दैट ऑल दैट काउंट्स इज हाउ यू डू टुडे। अगर आप आज का टाइम अपना अच्छे से निकालेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, डे बाय डे जैसे बूंद बूंद से बेटा घड़ा बढ़ता है, तो स्लोली एंड स्लोली दीज विल एड अप इन द लॉन्ग रन एंड यू विल डेफिनेटली रीच ग्रेट हाइट्स। थैंक यू। ये आपका वीकली शेड्यूल है, मैम भी शेयर करेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा। मधुलिका मैम, आई एम Okay. you please start. Stop sharing, ma'am. Okay, okay. Good morning, students. I'm Madhulika, ma'am, and back with the revision. I hope you must have remembered my revision in matrices. So today again, I'm going to revise whole determinant and giving you short trips. So get ready, have your copy pen ready, because I'm giving you short tips to solve and how to minimize the error. Secondly, my favorite, I will be giving you the list of must-do questions of NCERT. So even this is the doubt session also. So many questions have come from doubt, and most of students are worried about 4.2 properties of determinant. बच्चे उसमें डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लॉट में हर परसेंट मोर देन 80 to 90% बच्चों को इस 4.2 प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आती है। सो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको प्रैक्टिस करो, उसको बार बार करो। और मैं आज आपको बताऊंगी भी कि सबसे पहले उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज में के क्वेश्चंस में स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है। सो द डिटर्मिनेंट चैप्टर जो आपने खत्म किया आज, जो हम वाइंड अप कर रहे हैं, आपको उस चैप्टर में मेनली क्या क्या करना है बेटा, प्लीज जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स की तरह आप उसको लिखते भी जाइए। बाकी एस्पिरेशन अकाउंट में ये आपको पीडीएफ में मिलेगी। जब भी आप डिटर्मिनेंट रिवाइज करें, प्लीज इसी फ्लो के साथ चलें। आपको डिटर्मिनेंट 2x2 क्विकली सॉल्व करना आना चाहिए, आपको 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना चाहिए। प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज एमसीक्यू में भी पूछते हैं, अभी सर ने मैम ने जैसे बताया। और आगे जो क्वेश्चंस हैं आपके इनवर्स निकालने, उसमें आपको विद इन 2-3 सेकेंड्स में निकालना होता है। तो इट्स बेटर यू अप्लाई प्रॉपर्टीज एंड सेव योर टाइम इन द एग्जाम। एंड लास्टली जो आपका 6 मार्कर क्वेश्चन है, आपको आज प्राउड फील होना चाहिए कि हमने 10 मार्क्स का सिलेबस पूरी तरह से खत्म कर लिया है। आपका ये सॉलिड 10 मार्क्स जो बहुत ही इजी और स्कोरिंग क्वेश्चन है, वो आपका आज खत्म हो रहा है। आप इसको प्रैक्टिस करिए। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना आपको बहुत अच्छी से आना चाहिए। मैं बच्चों को कहती हूँ अपनी क्लास में भी, और आपको भी बेटा ये गाइड कर रही हूँ कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक टाइमर के साथ निकालो विदाउट एरर। टेक मैक्सिमम 5-7 minutes to solve an inverse matrix without error, और उसको फिर हम यूज करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में, जो 6 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार वो लोग बोलते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं इसको इसलिए रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि बच्चे स्टिल जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं वो इसके डिफरेंस की वजह से करते हैं। तो पहला वाला तो आपको कई बार आजकल बेटा 1 मार्कर में थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, ट्रू फॉल्स भी पूछ रहे हैं। तो मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर एंड डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। दोनों में डिफरेंस बेटा अपने माइंड में रखिए और उसको पॉइंट कॉपी में नोट कीजिए। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नंबर, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, और कई बार एमसीक्यू के जो ऑप्शंस दिए जाते हैं बच्चों आपको, उन ऑप्शंस में ये पूछा जाता है कि मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर बट डिटर्मिनेंट इज ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ये ट्रिक याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सुमन मैम ने मैट्रिक्स के 1 मार्कर कराया जिसमें ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहली बात तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो प्लीज गो थ्रू ये वाला स्टेप, बच्चे भूल जाते हैं कि ये मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है। तो उसको पहले टाइम पे आइडेंटिफाई करिए कि वो मैट्रिक्स है विद द ब्रैकेट और ये डिटर्मिनेंट है। तो जब नंबर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, और जब स्केलार में मल्टीप्लाई होता है तो या तो वो एक सारी रोज में होता है
या वो एक सारे कॉलम में होता है। ये प्रॉपर्टी बेटा कॉमन लेने में भी बहुत यूज होती है, क्योंकि कॉमन लेने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो प्रॉपर्टीज 4.2 के हैं वो यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, कि जब वो कॉमन लेते हैं तो वो डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम से डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेते हैं, बाकियों से नहीं लेते, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आता है। डिफरेंस आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस हमने कराए हैं कि डिटर्मिनेंट की क्वालिटी भी है और मैट्रिसेस की भी क्वालिटी है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रिपीट किया है कि बच्चे ये 1 मार्कर लूज कर जाते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको मैट्रिक्स की इक्वालिटी दी हुई है कि डिटर्मिनेंट की दी हुई है। इस क्वेश्चन में बेटा ये क्वेश्चन है कि दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो आप वैल्यू निकालिए एक्स की। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो वैल्यू निकालिए एक्स की। तो जब भी ऐसे इक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि वो आपका डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है। सॉल्व करिए बेटा इसको। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 सेकंड क्वेश्चन है ये। अगर आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो आप उसको कैसे इक्वेट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। I want quickly the answers in the chat box for this. Yes, students are doing correctly. बेटा जब आपको डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं तो पहले आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं और फिर उनको इक्वेट करना है। सो आंसर इज ±6। बच्चे अभी भी x इज इक्वल टू कोमल, आप x इज इक्वल टू 3 दे रहे हैं, ध्यान से करिए। अब मैं देती हूं आपको कि अगर आपको मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करिए ये मैट्रिक्स की इक्वालिटी है, ये डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी है, इसको सॉल्व करिए। फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगी कि इसको कैसे क्विकली करना है। सिंस मैट्रिक्स इक्वल हैं तो पहले हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने हैं। दोनों में डिफरेंस बेटा आइडेंटिफाई करिए। इसकी ट्रिक क्या है कि जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे इक्वालिटी की तो सॉल्व एंड इक्वेट करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे और फिर इक्वेट करेंगे। लेकिन जब आपके पास मैट्रिसेस आएगा तो आप पहले इक्वेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सो मेक इट अ पॉइंट इन योर कॉपी फॉर डिटर्मिनेंट सॉल्व एंड इक्वेट, फॉर मैट्रिसेस इक्वेट एंड सॉल्व। ये क्वेश्चन अभी भी सुमन मैम ने लिया है और मैं इसको मैंने दोबारा इसलिए लिया है कि मैं सिर्फ एक ही बात इसमें आपको याद करने के लिए और ध्यान देने के लिए देना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तो बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि वो सीधा इसको पकड़ते हैं, फर्स्ट को 5, 3, 8 और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, क्योंकि जनरली यही मेथड सिखाया जाता है और जब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो पहला मेथड यही सिखाया जाता है। लेकिन टाइम सेविंग ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन में तो आपको मेंशन किया गया कि सेकंड रो है, लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं भी किया हुआ क्वेश्चन में तब भी आपको सेकंड रो ही लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें एक जीरो है और आपकी एक कैलकुलेशन उसमें कम हो गई, आपको एक कोफैक्टर कम निकालना पड़ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आपका वहां पे टाइम सेव हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि जब भी आपको कोई ऐसा कोफैक्टर निकालना है जिसमें कहीं पे भी जीरो है, so try to expand along that only row और column जिसमें जीरो हो, तो क्या आपकी। और दूसरी बात, इसको आइडेंटिफाई मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, आपको भी आ गया, सिर्फ हम क्विकली आपको रिवाइज करवा रहे हैं कि जो आपको गलतियां नहीं करनी है। ये नंबर है, ये कोफैक्टर है और ये आपको सेम लेना है 21, 21, 22, 22। इसमें गलती करते हैं बच्चे, ये लगता है कि बहुत आसान है लेकिन डिटर्मिनेंट ही गलत हो जाता है तो आगे का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। सॉल्व करके दिखाइए मुझे। आई एम गिविंग यू 1, 2, 3 सेकेंड्स। देखिए आपका 3-4 सेकंड में डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। मधुलिका मैडम, इससे पिछली स्लाइड में क्वेश्चन की स्टेटमेंट शायद रॉन्ग है। ये आपको पता है मैट्रिसेस माइनस निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, सारे कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 निकालने हैं।
और लास्ट में एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, कोफैक्टर्स में साइन का ध्यान करना है. यस, सो मेनी स्टूडेंट्स आर कैलकुलेटिंग 7, बट कुछ मुझे अभी भी 21, 3 सुभाष 3, प्रीति 3. बेटा ध्यान से अकॉर्डिंग टू ये आइडेंटिफाई नंबर और ये, क्योंकि यही अगर गलत हो गया तो आपका इनवर्स गलत, आगे आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन गलत. तभी मैंने ये क्वेश्चन दोबारा लिया है ताकि आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर सकें. सो मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन 7, वेरी गुड. नाउ डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स डिटर्मिनेंट्स में आए थे. आई हैव कंपाइल्ड द कॉमन डाउट्स और 2-3 प्रॉपर्टीज वाले 4.2 के जो क्वेश्चंस बच्चों को टफ लगे उसको मैंने सिंप्लीफाई मेथड से करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सबसे पहले रिद्धि का डाउट था कि काइंडली रिवाइज ऑल प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट. यस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर कि आपको प्रॉपर्टीज शॉर्ट में और बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं. सो क्विकली आई एम रिवाइजिंग. प्रॉपर्टी 1, अगर आपका ट्रांसपोज है और आपका डिटरमिनेंट रो या कॉलम कोई भी इंटरचेंज हो जाता है, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. प्रॉपर्टी 2, आपको पता है कोई रो या कॉलम हम करते हैं तो एक बार चेंज करने से आपका माइनस, नेक्स्ट में फिर माइनस ऑफ माइनस, तो वो पॉजिटिव हो जाता है. तो इस तरह से ये कॉमन लेने में और सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं. प्रॉपर्टी 3, आपको पता है कोई भी रो कोई भी कॉलम आपका 0 हो जाता है. ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज को यूज करके डिटर्मिनेंट में क्या ध्यान रखना. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 1 बनाओ ताकि आपकी कैलकुलेशन मिनिमम हो जाए. इफ एनी 2 रोज और आइडेंटिकल, ये भी बेटा अगर आपकी 2 रोज कुछ कॉमन लेने से, कुछ भी के लेने से, माइनस नंबर कॉमन लेने से सेम हो रहा है, तो डू इट एट फर्स्ट लेवल ताकि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े और आपका प्रॉपर्टी यूज करके सीधा डिटर्मिनेंट 0 हो जाए. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू मेक 1 जो मैं आपको अभी बता रही थी, कॉमन लेने की कोशिश करो ताकि आपकी मिनिमम कैलकुलेशन. अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को यहीं से सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे आप, 102 into 3 into दिस, ये नहीं करना, इट्स अ ब्लंडर. इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो ताकि आपकी कैलकुलेशन बाद में जब सॉल्व करो तब आपको यहाँ पे सिर्फ 6 इक्वलिटी, यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सो प्लीज यूज दिस ट्रिक्स. ये ट्रिक्स आपके माइंड में बिल्कुल एम्बेडेड होनी चाहिए कि मुझे डायरेक्ट ऐसे नहीं करना. पहले प्रॉपर्टी, बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं कि प्रॉपर्टी ना लगानी पड़े, हम वैसे ही कर लेते हैं, वो आसान काम है. वो आसान नहीं है बेटा, उसमें एरर होने के चांसेस होते हैं. ये प्रॉपर्टी बहुत सारे 4.2 के फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहे हैं. If an element, row, column of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, जब भी आपको किसी में भी ऐसे सम मिलता है तो बेटा सबसे पहला स्टेप करो कि उसको ब्रेक कर लो, क्योंकि वो आसान हो जाता है. इसमें क्या होता है कि कई बार कुछ कॉमन आ जाते हैं, कुछ आइडेंटिकल रोज मिल जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है. तो जब भी आपका किसी रो किसी कॉलम में एडिशन आ रहा है तो आप उसको पहले ब्रेक करो. ये अभी सुमन मैम ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ये 1 मार्कर में बहुत यूज होता है, ये आपका इनवर्स कैलकुलेट करने में बहुत यूज होता है कि अगर आपके पास इस तरह का इफ एंड डिटर्मिनेंट ऑल एलिमेंट्स अबव एंड बिलो आर 0, कोई जरूरत नहीं है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से डिटर्मिनेंट निकाले, डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे. दिस इज अ बून फॉर कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेंट्स. दिस इज जो स्पेशल ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ, इसको प्लीज बेटा कॉपी में नोट करिए. फर्स्ट, क्रिएट मैक्सिमम वंस. जब आपके पास किसी रो किसी कॉलम में 1 आ गए, क्विकली नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए, या ऑपरेशन आपकी ये होनी चाहिए कि आप उसको माइनस करके 0 बना दें, ताकि जितने 0 ज्यादा होंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही आसान होगी. सो क्रिएट मैक्सिमम वंस. नंबर 1, क्रिएट कन्वर्ट मैक्सिमम वंस इनटू मैक्सिमम 0. ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर नोट करो बच्चों इसको कि हमेशा उसी रो और कॉलम में के अलोंग एक्सपैंड करो जिसमें मैक्सिमम 0 होते हैं. आपका टाइम सेविंग है बेटा. मैथ्स क्विज पेपर में 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप
लिमिटेड टाइम में उस क्वेश्चन को एरर फ्री कैसे कर सकते हैं, तो वो ट्रिक्स आपको एक्सेल करनी है। रो वाइज ऑपरेशन जनरली लिखी ऐसे जाती हैं R1 प्लस R2, अप्लाई वर्टिकली होती है। कॉलम वाइज ऑपरेशंस अप्लाई हॉरिजॉन्टली होती है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अप्लाइंग करने में कंफ्यूज होते हैं। सो प्लीज ये स्पेशल ट्रिक्स हैं, इनको फटाफट नोट करके स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए और इसको माइंड में रखिए। क्रिएट मैक्सिमम वंस, वंस को 0 बनाओ, एक्सपैंड करो 0 के अकॉर्डिंगली। रो वाइज ऑपरेशन को वर्टिकली अप्लाई करना है, कॉलम वाइज ऑपरेशन को हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना है। वैलिड इनवैलिड ऑपरेशंस बहुत क्लियरली आपको पता होने चाहिए बच्चे। दूसरा, ये जो लिखने में गलती करते हैं, ये R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3 है बेटा, यहाँ पे ये गलत है, इसको ठीक कर लेना। लेकिन गलती इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, ये R1 प्लस R1 होना चाहिए, C1 यहाँ C1 होना चाहिए, C2 यहाँ C2 होना चाहिए। इसमें लिखने में गलती करते हैं। जब आप लिखेंगे गलत, एग्जामिनर उसको गलत कॉम्प्रिहेंड करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू अप्लाई ऑपरेशंस। आपका ऑपरेशंस क्लियरली मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। ये वाला क्वेश्चन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 अजय ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। प्लीज बेटा इसकी जो मैं स्टेप्स आपको बोल रही हूँ वो साइमल्टेनियसली आप करते जाइए, तो आपको स्टेप्स समझ में आएंगे। कि दो क्वेश्चन 4.2 के मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करनी है और क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है वो आपने करना है। प्लीज क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो मैं मेथड आपको ये वाला बता रही हूँ वो आपको माइंड में एम्बेडेड होना चाहिए। 4.2 का सक्सेस मंत्र यही है कि उन क्वेश्चंस के स्टेप्स आपके माइंड में बिल्कुल सेट होने चाहिए। और दूसरी ट्रिक कि जब भी आप प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, आप राइट हैंड साइड को फोकस करिए कि आपने आंसर क्या लाना है। ये मैं आपको इस क्वेश्चन में भी बताऊंगी, ये मैं आपको अगले क्वेश्चन में भी बताऊंगी। मुझे यहाँ पे 0 लाना है। 0 लाने का मतलब है कि मुझे ये सारी चीजें भी 0 करनी पड़ेंगी। ये आपका एक किक होता है। आपको प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन मुश्किल क्यों लगते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि स्टार्ट क्या करना है। वो स्टार्टिंग पॉइंट बेटा आपको उसके राइट हैंड साइड में जो आंसर है उससे मिलेगा। सो आई होप आप इसको साइमल्टेनियसली करेंगे। अब ये देखिए, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए। अब गलती इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, बस -1 लिया खत्म, नहीं। -1 डिटर्मिनेंट के हर एक रो में से निकलेगा। एक बार -1 यहां से निकला, ये -1 आया, दूसरा सेकंड से निकला, फिर -1 आया, तीसरा थर्ड से रो से निकला, फिर -1 आया। तो कई बार बच्चे इसको एक रो से ले लेते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, 2 को ले लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, तो वो आंसर यहाँ पे माइनस गड़बड़ हो जाता है। अगर आप -1 2 बार लेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो आंसर लंबा हो जाएगा। ये नहीं है कि आपका आंसर निकलेगा नहीं, आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। क्योंकि कई बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो और क्वेश्चन है, या तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से आता है और ये एक प्रॉपर्टीज से आता है। तो ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट में आ जाइए बेटा, जब मैंने इसको सारा -1 कॉमन कर लिया, तो आप इसको स्टडी करिए, इसको नोट करते जाइए साथ में कॉपी में कि आपके देखिए सारे साइंस चेंज हो गए। 0 -a b, ये आपका माइनस इसमें से कॉमन लिया, जब इसमें से कॉमन लिया तो ये चेंज हो गया, और लास्ट में से कॉमन लिया तो ये चेंज हो गया। अब -1 क्यूब आपका -1 बनेगा। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, वो 2 बार कॉमन लेते हैं, यहाँ प्लस आता है तो क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसलिए तीनों में से कॉमन लेना। फर्स्ट स्टेप बेटा 4.2 क्वेश्चंस का सारे ऑपरेशन माइंड पे लिखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये ऑपरेशन करने हैं, शॉर्टेस्ट मेथड सॉर्ट आउट करके रखो। अब जब मैंने इसमें ये ऑपरेशन लगा ली, तो अब आप इन दोनों 1 और इसको फोकस करो। अगर मैं इनको ऐड कर देती हूं तो मेरा आंसर 0 आ गया। सिर्फ एक ही स्टेप का क्वेश्चन था, जो बच्चे बहुत बड़े बड़े मेथड्स करते हैं, सिर्फ इसी में यही ट्रिक थी। अब देखो, इसको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास दूसरी गलती या 2 आएगा, क्योंकि ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है। दोनों को ऐड करने से मेरा यहाँ पे 2 आएगा। और वैसे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि 0 है, लेकिन स्टेप में मार्क्स कट सकते हैं आपको। जब मैंने इसको ऐड किया
तो मेरे पास 0 आ गया, आंसर मेरा 0 आ गया। तो ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, कई बच्चे इसको बहुत लंबा करते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये ट्रिक आपने 4.2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करनी है कि जब आप क्वेश्चन करने लगे तो ऐसा मेथड एक फाइंड आउट करिए जो मिनिमम कैलकुलेशन करे, और वो ऑपरेशन बुक में ही उन क्वेश्चंस के आगे लिख लीजिए, ताकि जब भी आप 4.2 करें तो आप वही ऑपरेशंस रिपीट करें और वो ऑपरेशंस आपको एक तरह से याद हो जाए। मैं कहती हूँ 4.2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस प्लस क्रैमिंग। आपको क्रैम भी करनी है, तो इसको फोकस करिए राइट हैंड साइड को, और वो करिए स्टेप्स आइडेंटिफाई करिए। आई एम गिविंग यू 2-3 seconds a pause so that you can comprehend this question or you can take the screenshot. बेटा एस्पिरेशन अकाउंट में भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्लीज नोट डाउन दिस मेथड। ये बहुत बच्चों का डाउट था। विद्यासागर सर ने जब मेरे को डाउट की लिस्ट भेजी तो 4.2 के सबसे ज्यादा डाउट्स थे। सो आई एम फोकसिंग ऑन दिस डाउट्स ओनली। इलेवेंथ क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट होता है इस क्वेश्चन में, और इसकी एक ही ट्रिक है, फोकस ऑन दिस राइट हैंड साइड। ये लंबा क्वेश्चन है बेटा, फोकस करने की कोशिश करो। इसके 6 स्टेप्स हैं जो मैंने एक एक आपको लिख के क्लियर करने की कोशिश करी है। आप उसको कॉपी में साथ साथ करने की कोशिश करिए बेटा। a + b + c क्यूब, ये इस क्वेश्चन का किक है। इसका ये मतलब है कि मुझे ऐसी ऑपरेशंस इस डिटर्मिनेंट में लगानी है कि मुझे हर स्टेप में से एटलीस्ट 3 बार a + b + c कॉमन मिले, क्योंकि जब मुझे a + b c कॉमन मिल जाएगा 3 बार तो ये मेरा आंसर पहले ही आ जाएगा, और रिमेनिंग डिटर्मिनेंट आपका 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश कर रही हूँ कि राइट हैंड साइड को फोकस करके अपना प्लान ऑफ स्टेप्स, प्लान ऑफ रो ऑपरेशंस आपको फाइनलाइज करना है। तो इसमें क्योंकि 3 बार है तो आपको 3 बार करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आपको पता होना चाहिए कि मुझे a + b + c कैसे मिल रहा है। दूसरी, आपको ये भी हमने बताया हुआ है पिछली क्लासेस में हमारे सभी टीचर्स ने, कि इस तरह के जो डिटर्मिनेंट होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं और ये एलिमेंट्स थोड़े से सिंप्लीफाइड होते हैं, तो उसमें ये वाली ऑपरेशन या c1 + c2 + c3 ये सबसे बड़ी सक्सेसफुल होती है। तो सीधा ये अप्लाई कर दो। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें डिफिकल्ट है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना नहीं डिफिकल्ट जितना बच्चे से डर जाते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी बेटा तो देखो मेरे को फर्स्ट में a + b c मिल गया, तो मेरा a + b एक तो मिल गया मुझे। अब मुझे 2 और लाने हैं क्योंकि क्वेश्चन में a + b + c। इस स्टेप में बच्चा आपको क्या कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम वंस बनाओ। तो जब मैं a + b + c ले लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम 1 आ गया। एक में सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है बेटा इसमें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब जब आपके पास मैक्सिमम 1 बन गए तो मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया आपको कि 0 बनाओ। तो जितने 1 है उनको मैक्सिमम को 0 बना सकते हो आप, वो बनाओ। 0 कैसे बनेगा, c1 - c2 करो, एक 0 बन जाएगा आपका। c2 - c3 करो, आपका एक और 0 बन जाएगा। बेटा इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस लिख लीजिए। a + b from R1, कॉमन a + b from R1, c1 - c2, c2 - c3। ये 3 क्वेश्चन 4 कल के लिखिए और फिर इसको ट्राई करिए आप बाद में बेशक, लेकिन अभी आप इसका सिस्टम देखिए बेटा मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ। सो आई रिपीट, a + b एक बार कॉमन आ गया, एक बार कॉमन आने से मेरे पास मैक्सिमम 1 आ गए, उस 1 को मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया 2 स्टेप्स में, c1 - c2, c2 - c3। आई होप यहां तक ये स्टेप क्लियर है बेटा। अब मेरे क्वेश्चन में तो 3 थे, अब आप देखो एक और सी पे आता है। अगर मैं पीछे जाऊं बेटा इसमें तो आपका ये देखो, ये वाली में देखो, यहां से भी मैं, यहां से एक मैं a + b कॉमन ले सकती हूँ, एक मैं यहां से ले सकती हूँ कॉलम से। ठीक है, मुझे बिना किसी ऑपरेशन लगाए यहां से कॉमन मिल रहा है और यहां से कॉमन मिल रहा है। बच्चे कॉमन यहां ऐसे ढूंढते रहते हैं रो वाइज और ऑपरेशंस लगाते रहते हैं, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो कि कॉलम वाइज भी आप ले सकते हैं, तो आप उसको वैसे फोकस करो कि आपका कॉलम वाइज क्या कॉमन आ रहा है। तो यहां से एक आ गया,
यहां से एक आ गया, चलो मेरा a प्लस बी प्लस सी क्यूब तो मेरा बन गया, 2 बार कॉमन ले लिया। अब देखिए आपको कितने जीरोस और कितने वंस मिल गए। यहां से भी आप इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और इसको 1 को रिमूव करना चाहते हैं वो कर लीजिए, नहीं तो आप यहां से भी ले सकते हैं। एक स्टेप में आपने यहां से कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम से, नेक्स्ट स्टेप में आपने यहां से कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करना है बेटा, यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन स्टिल अगर मैं इसको कर दूं तो मेरा कोई और जीरो मिल जाएगा, मेरी कैलकुलेशन और कम हो जाएगी। अब देखो बेटा मेरा आंसर तो यहाँ पे आ गया। ये ट्रिक भी बेटा आपको दिमाग में रखनी है कि मेरा आंसर तो मेरा आ गया, इसका मतलब मेरा ये आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, मेरा ये आंसर 1 आना चाहिए। उसको सॉल्व किया बेटा और आंसर आपका ये 1 आ गया। ये बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा सा वो मेथड क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैं इसको एक बार क्विकली रिपीट कर देती हूँ फटाफट, ताकि आपको याद हो जाए ये क्वेश्चन, बिकॉज ये याद होना भी जरूरी है। a प्लस बी प्लस सी को 3 बार कॉमन लेना है। पहले r1 प्लस r2 प्लस r3 करके उसमें कॉमन ले लो, मैक्सिमम आपके 1 बन गए, उस 1 को 0 बना लो। 0 बनाने के बाद फिर से देखो आपके पास और कितने a प्लस बी प्लस सी बाहर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? रो वाइज, कॉलम वाइज, जैसे भी कर सकते हो आप, जो आपका इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड है। इन क्वेश्चंस की ट्रिक यही है बेटा, शॉर्टेस्ट मेथड्स आइडेंटिफाई करके रखो। 2 बार, 3 बार, 5 बार जब ये आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो टिल द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं। एक ये क्वेश्चन कोमल ने पूछा मेरे से कि मैम ये डिटर्मिनेंट आप इतना पढ़ा रहे हो, ये डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है? तो फिर मैंने सोचा चलो ढूंढते हैं। आपने वैसे पढ़ लिया है, बट ये क्वेश्चन बच्चों ने क्यों पूछा? आपने पढ़े नहीं है, एरिया निकालना। तो सबसे बड़ी क्या है बेटा, मैथ्स कैलकुलेशन कराता है। मैथ्स क्या कराता है कि आर्ट ऑफ अवॉइडिंग कैलकुलेशन। मैट्रिक्स उस कैलकुलेशन को भी और शॉर्ट करता है कि भी हम और शॉर्ट कर लें। और डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की कैलकुलेशन, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है मैट्रिसेस में भी तो उतनी कैलकुलेशन है, फिर आप हमें क्यों करा रहे हो? तो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिसेस की कैलकुलेशन को भी शॉर्ट करता है। तो डिटर्मिनेंट आपकी कैलकुलेशन को शॉर्ट करता है। वो कैसे? देखो, आपको पता है आपने इस चैप्टर में 3 मेथड एप्लीकेशन किए हैं, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, लीनियर इक्वेशन। बेटा 3 लीनियर इक्वेशन आपने छोटी क्लासेस में 9th और 10th में देखा है कि आपका लीनियर इक्वेशंस बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो इससे कितना आसान हो जाता है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपने हीरो फॉर्मूला से किया है, इसमें से देखो कितनी आसानी से हो जाता है। कोलिनियर पॉइंट्स के आपने पता नहीं कितने मेथड कर लिए 9 से। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू फाइंड, बट दिस मेथड इज द शॉर्टेस्ट, जो आपको डिटर्मिनेंट 0 कर दो तो कोलिनियर हो जाता है। इसके अलावा जब आप हायर में जाओगे, एमएससी में जाओगे, तो 4 वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। अभी आपके 3 वाले हैं, तो आपके 4 वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। कोप्लेनर पॉइंट्स निकालना, वो सीधा डिटर्मिनेंट से देखो कितने आसान से निकल जाता है। नेक्स्ट डाउट बेटा, शिवानी कुमारी ने ये क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों का डाउट था, जो एक एप्लीकेशन है इसमें कि शो दैट द पॉइंट्स a + 5, a - 4, a - 2 and a + 3 they don't lie on a straight line for any value of this। तो 2 पॉइंट्स बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है, डोंट लाई। अभी भी सुमन मैम ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सीधा उसने कोलिनियर ना कह के आपको कह दिया डोंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और आपको वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। आपको पता है अगर वो लाई स्ट्रेट नहीं करते तो आप उसका पहले एरिया निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते, इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है। वो कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब वो आपको क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। एरिया निकालिए इसका। जैसे ही हम एरिया निकालेंगे, अब ये देखो बेटा, ये फॉर्मूले में अप्लाई किया, आपको अच्छे से आता है। सारे x लिख लो, सारे y लिख लो, 1 1 लिख लो। बच्चे यहीं पे सॉल्विंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ने का क्या फायदा हुआ अगर आप इस डिटर्मिनेंट को फिर से वैसे ही कर रहे हैं। वही वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम 1 है, इसको 0 बनाओ, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, आपके पास 2 0 आ जाएंगे। जैसे ही 2 0 आएंगे, आपको सिर्फ एक ही एक्सपैंड करना पड़ेगा। 0 बनाया और इसका तो देखो ये बेटा 7.2 आ गया। Hence given points do not lie on a straight line.
इनवर्स का बेटा अभी सुमन मैम ने भी बता दिया, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब आपको पता है इनवर्स के 3 मेथड हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एडजॉइंट मेथड, और ये लास्ट मेथड बाय यूजिंग आइडेंटिटी। थोड़ा सा आपको सुमन मैम ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इसका एक क्वेश्चन लूंगी, इसलिए मैम ने वहां एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। पहले तो ये कंपलसरी क्वेश्चन होता था, लेकिन आजकल इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके एमसीक्यू में कर देते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये दोनों मेथड आप कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका, ये भी डाउट था बेटा किसी बच्चे का इनवर्स निकालने का। आपको एक आइडेंटिटी दी हुई है और उस आइडेंटिटी को यूज करना है। इसमें देखो बेटा 2 पॉइंट है, शो दैट एंड हेंस। पहले आपको ये प्रूव करना है। आप इसमें इनवर्स तभी निकाल सकते हैं अगर ये आइडेंटिटी होल्ड करती है। अगर ये आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती तो आप इस मेथड से इनवर्स नहीं निकाल सकते। सो पहले ए स्क्वायर निकालो, 5a माइनस 5a निकालो, 7i निकालो। दूसरा पॉइंट, आई बेटा यहाँ पे वही रहेगा, 2x2 मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो आपका वही रहेगा। ए आपका 3 माइनस 1 1 2 रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपको जल्दी से निकाल लो। क्या निकाल लो, फटाफट निकालो बेटा। ए स्क्वायर, ये स्टेप मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपकी बहुत प्रिलिमिनरी नॉलेज है। बेटा प्रोडक्ट निकाला, -5a में बेटा 5 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला हर एक एलिमेंट से। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ये मैट्रिक्स है। 7 आपका हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये 3 मैट्रिसेस आ जाएंगे। इसमें माइनस का ध्यान रखना है। आंसर आपका 0 आना चाहिए, क्योंकि वो शो दैट कह रहा है, तो आंसर 0 आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं बेटा। तो जब ये आइडेंटिटी होल्ड कर गई, ये 0 आ गया, अब हम इसको यूज करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ इस क्वेश्चन को लेने के लिए। यस, ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ की। अभी मैम ने भी आपको एक्सप्लेन किया, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि उसमें स्टेप्स नहीं थे। ए इनवर्स को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही ए इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बन गया, ए इनवर्स माइनस ए बन गया, और ए इनवर्स 7 बन गया। जब आप इसको करेंगे बेटा, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो एक ए इनवर्स ए, ये तो आई बन गया, ए इनवर्स आई, ये भी आई बन गया, और ये आपका 7 इनवर्स इंटू आई बन गया। अब आप ये देखिए, ये आपका आई ए बन गया, ये आपका 5i बन गया, ये आपका 7a इनवर्स बन गया। इसको यूज करके बेटा आप बहुत इजीली इनवर्स निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये 1 मार्कर में पूछेगा, जैसे सुमन मैम ने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन इस आइडेंटिटी को सॉल्व ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपका ये फाइनल आंसर गलत हो गया तो आपका इनवर्स भी गलत हो जाएगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5ia। बस अब तो आपको सीधा वो एडजॉइंट वो निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा इसमें 5i आपका वही ऑर्डर रहेगा जो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, ये आपका वही रहेगा, और इसको सॉल्व करके आपका ए इनवर्स आ जाएगा। दिस मेथड एमसीक्यू में ज्यादा आने की उम्मीद है बेटा, तो इसलिए ये कैलकुलेशन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का मैट्रिसेस में, जो बहुत बच्चों का डाउट था पिछले सेशन में, वो इस तरीके से करिए तो बेटा इनवर्स जल्दी निकलता है फॉर एमसीक्यू पर्पस। सो आई एम गिविंग 2-3 मिनट पॉज टू जस्ट नोट डाउन दिस मेथड, जस्ट दिस स्टेप्स आप नोट करिए कि इसको कैसे एक्सपैंड करना है, उसके बाद तो आप कर लेंगे। यस, हर्षित गोयल ने ये बोला है कि सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन द सॉल्विंग इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बेटा ये 6 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म्ड है। इसके लिए मैं आपको पिछले वाले में भी मैंने आपको एल्गोरिथम दिए थे। 6 मार्कर क्वेश्चन का एल्गोरिथम की लिस्ट बना के रखी है कि उनमें, क्योंकि उसमें स्टेप्स मार्क्स होते हैं। एल्गोरिथम टू फाइंड इनवर्स, नोट डाउन करिए बेटा इसको। फाइंड डिटर्मिनेंट ए, फाइंड माइनर, देन कोफैक्टर। इस स्टेप में बेटा माइनर करके बच्चे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं।
नहीं, माइनर के साथ कोफैक्टर निकालिए। और दूसरी गलती कहाँ करते हैं, ट्रांसपोज नहीं लेते। सो ये स्टेप आपके माइंड में बिल्कुल याद होने चाहिए। फाइंड डिटर्मिनेंट, फाइंड कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज, फाइंड जॉइंट, adjoint, and then divide adjoint by determinant to find inverse. नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड एडजॉइंट का अभी भी मैम ने एक्सप्लेन किया है। जब भी 2x2 क्वेश्चन आ रहा है तो उसको प्लीज उस मेथड से नहीं करना, इसको इंटरचेंज करना है, इसके साइन चेंज करने हैं। ये आपको बहुत अच्छे से अब याद हो गया होगा। ये जो आप कह रहे हैं कि हमें 1 मार्कर 6 मार्कर क्वेश्चन नहीं हो रहा, प्लीज गो बाय दीज 6 स्टेप्स। अगर आप इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो आपका 6 मार्कर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सो मैं क्विकली आपको याद करवा देती हूँ ये स्टेप्स। कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स, ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। ए आपका कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिसेस में जो जितने भी इक्वेशंस दी हुई हैं उनके कोफिशिएंट होते हैं। एक्स आपका वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड जो आपको निकालना होता है। बी आपका कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही बेटा 1 मार्क का है एग्जाम में, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। बच्चे क्या करते हैं, जॉइंट शुरू कर देते हैं डिटर्मिनेंट। अगर आपका डिटर्मिनेंट ही नहीं आ रहा इक्वल टू 0 देन प्रोसीड। अगर आपका यहाँ 0 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है बेटा, तो आप कहोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर एडजॉइंट, एडजॉइंट ए में जो ध्यान रखना है, बच्चे ट्रांसपोज नहीं करते हैं इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। सो एडजॉइंट में ट्रांसपोज का ध्यान रखना है। फिर इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। लास्ट स्टेप में आपको प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स और मैट्रिक्स भी निकालना है। ये हमेशा आपका 3x1 मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि आपको 1 x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक ही आएगा, 3x1 मैट्रिक्स ही आएगा, जिसको आप कंपेयर करके x y z निकालेंगे। तो प्लीज ये एल्गोरिथम याद कर लीजिए और इसी फ्लो में चलेंगे तो आपका वो 6 मार्कर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम डीएन सर ने भी लिया था, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था कि प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन भी बेटा एग्जामिनर का फेवरेट है। जो क्वेश्चन को, पेपर को जब डिफिकल्ट बनाना होता है तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे दे देता है। इसमें एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है कि जो आपकी जो इक्वेशन दी हुई है इसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है बेटा। और जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, देखो इसमें ये वाली ट्रिक है 2y - 3z, तो इसमें आपका वो नहीं है, तो एक मैट्रिक्स इसमें A होगा और एक मैट्रिक्स इसमें उसका इनवर्स होगा। ये ट्रिक है इसमें। अगर आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो इसका मतलब एक आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है और एक आपका उसका इनवर्स है। उस इनवर्स को यूज करके आपने ये क्वेश्चन यूज करना है। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन, वही मेथड शुरू कर देते हैं, एडजॉइंट निकाला, इनवर्स निकाला, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर 6 मार्क का। ये यूज प्रोडक्ट का मतलब है पहले आपको ये प्रोडक्ट करके ये दिखाना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जब दिखा दिया आपको तो आपके पास इनवर्स डायरेक्टली आ जाएगा विदाउट यूजिंग द प्रॉपर एडजॉइंट इनवर्स मेथड। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका लिया है कि ये मेथड भी आता है और ट्विस्ट करने के लिए कई बार साइमल्टेनियस इक्वेशन को वो ऐसे देता है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, या आपको कन्वर्ट किया उसने इक्वेशन में, ये आपको बहुत क्लियर होगा, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो ध्यान रखिए कि जो आपका ये है, 2 प्रोडक्ट दिए हुए हैं आपको, उसमें एक तो आपका ये A आ गया और दूसरा आपका A इनवर्स आ गया। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें किसको इनवर्स लें। वो आपने कहाँ से आइडेंटिफाई करना है बेटा, जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो ये जो इक्वेशन है उनमें से जो दोनों में से ये वाला मैट्रिक्स होगा वो आपका A है और दूसरा वाला आपका A इनवर्स है। तो यहां से मेथड अब आपको वही फॉलो करना है, लेकिन इनवर्स आपको बेटा यहां से लेना है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है विदाउट एडजॉइंट मेथड। दूसरा जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है वो आपका इनवर्स है। बस एक ही स्टेप करना है इसमें कि आपको उस इनवर्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस आंसर को किसी एक इक्वेशन में रख के आपको वो जरूर चेक करना है, क्योंकि 6 मार्क्स का सवाल है बेटा। चेकिंग, ये क्वेश्चन मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो अगर दूसरी बात, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा
प्लीज दोबारा मत जाइए कि क्वेश्चन में गलती ढूंढिए, क्रॉस करिए एंड रीस्टार्ट अगेन, क्योंकि गलती ढूंढना वो ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन भी कई बार 6 मार्क्स में वो यूजिंग प्रोडक्ट करके आपको देता है। नाउ द लास्ट, अब आपका ये 2 चैप्टर्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं। हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की है बच्चों कि आपको मैक्सिमम जितने डाउट्स थे, जितने आपको प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करनी। अब आपके 4 दिन आपके पास नो मैथ्स क्लास है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को आपकी क्लास है। आज का दिन भी है फ्राइडे, एंड दिस इज माय फेवरेट। आई गिव मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट ऑफ चैप्टर 4। ये क्वेश्चंस आपको नोट करिए बेटा, और ये 4 दिन में मेक इट अ पॉइंट कि आप 3-3 एक दिन में खत्म करेंगे, ताकि आपके ये 4 दिन में ये आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर बिल्कुल फाइनलाइज हो जाए, और आप हमेशा 10 मार्क्स कभी भी ना लूज करें इसको। हमारा पूरी फैकल्टी का यही एम था कि ये 10 मार्क्स बच्चों के बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, बट मेक यूज ऑफ दीज 4 days टू वाइंड अप दीज 2 चैप्टर्स, क्योंकि अब हम नेक्स्ट चैप्टर रिलेशंस या फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये आप जैसे जैसे मैथ्स में आगे आगे जाते हैं बेटा, पुराने चैप्टर्स की पकड़ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आप अगर अपना मैटर, जो मैंने आपको बोला था एक लिस्ट टू डू बना के मार्क करके रखिए, वो आप साथ साथ करते जाइए। दूसरी बात मैंने इसमें और ऐड किया है, ऑल 1 मार्कर ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज मस्ट टू डू। हर टाइप सुमन मैम ने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ टेक इट एज अ पेपर, आप रिवाइज करिए इस पीडीएफ से, और उस एग्जाम्पलर के 1 मार्कर को एज अ टेस्ट कंडक्ट करिए, ताकि आपके 1 मार्कर में कोई गलती ना हो। अगेन मेरा सक्सेस फॉर मंत्रा टू रिवाइज अ सब्जेक्ट यही रहता है, पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करिए, सारे प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो मैंने मस्ट डू दिए हैं वो करिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एग्जाम्पल कभी भी नहीं छोड़ना, उसकी 2-2 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। 1 marker NCERT exemplar must do, you cannot at all ignore these questions। और फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए बेटा, उसको एज ए टेस्ट कीजिए कि मैं कितना 10 मार्क्स, सोचिए 10 मार्क्स का पेपर कर रहा हूँ, टाइम लिमिट सेट करिए, वो 10 मार्क्स में मेरे कितने आ रहे हैं, मैं किस में गलती कर रहा हूँ, रिविजिट करिए। 1 मार्कर में गलती कर रहा हूँ, 6 मार्कर में गलती कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, उसको फिर रिवर्स ऑर्डर में चलना शुरू कीजिए। So I hope we have all been successful to make you comfortable in matrices and determinants. So I hope अब कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई रहेगा भी तो हम आपके लिए बैठे हैं। So have a nice day बेटा, God bless you all, keep practicing, keep yourself safe and practice, ठीक है? So I'm waiting for 2-3 minutes to have our feedback, so that we can work more hard for the next session. And if you have any query, anything you want us to do for the improvement of this session, please feel free to share. So I hope I'm very clear to everybody. Thanks a lot, and God bless you all.